हेलो पब्लिक, प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू। आज फटाफट फटाफट करेंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट्स A, B and C. Their chances of solving it are timber timber timber. If all of them try independently, what is the probability that problem is solved by exactly one of them? Now what is given? Probability of A is given to be how much? 1 upon 3. Probability of B is given to be 1 upon 4. Probability of C is given to be how much? 1 upon 5. Exactly one of them solve the problem. इसका मीनिंग क्या है? अगर A ने सॉल्व किया तो B और C ने नहीं, और मीन्स प्लस, अगर B ने सॉल्व किया तो A और A और C ने नहीं, और इफ अगर C ने सॉल्व किया तो A और B ने नहीं। ठीक है, so this will become, these are independent events. You can write this as probability of A into probability of B dash into probability of C dash plus probability of A dash into probability of B into probability of C dash plus probability of A dash into probability of B dash into probability of C. What is probability of A? 1 upon 3. What is probability of B dash? 1 minus 1 upon 4, that is 3 upon 4. C dash will be 4 upon 5. Probability of A dash will be 2 by 3 into 1 by 4 into 4 by 5. A dash is 2 by 3, B dash is 3 by 4 and C is 1 upon 5. Calculate exactly one of them, solve the problem. Next is what? Probability that the problem is solved by exactly two of them. म्हणजे if A and B will solve the problem, C will not, or if A and C will solve the problem, B will not, or if B and C will solve the problem, A will not. They are independent events. This will be probability of A into probability of B into probability of C dash plus probability of A into probability of B dash into probability of C plus probability of A dash into probability of B into probability of C. Next is the problem is not solved. The problem is not solved matlab it is not solved by A, it is not solved by B, it is not solved by C. So this is equal to how much? Probability of A dash into probability of B dash into probability of C dash. Correct? Substitute. What is probability of A dash? 3 upon 4. Probability of B dash, probability of A कितना है भाई? 1 upon 3. तो this will become how much? Probability of A dash will be 2 upon 3. This will be 3 upon 4 and this will become 4 upon 5. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. This will become how much? 2 upon 5. The problem is what? Solved. Now this is important. The problem is solved. इसका meaning क्या है? The problem is solved either by A or B or C or A and B or B and C or C and A or A, B and C. प्रॉब्लम किसने प्रॉब्लम इज सॉल्व, इट इज सॉल्व आइदर बाय ए और बाय बी और बाय सी, मतलब इट इज सॉल्व, दैट इज इट इज सॉल्व by at least one of them. झेप रहा है ना? At least one of them म्हणजे काय? युनियन, either A और B और C. इसका फॉर्मूला क्या है? P of A plus P of B minus P of C minus P of A intersection B प्लस P of B intersection C. सॉरी, इधर क्या है? माइनस P of C intersection A प्लस P of A intersection B intersection C. बड़ा है तो बेहतर है। और मैंने हमेशा आपको बोला है पहले लेक्चर से, whenever it is at least one, use what? Complement of the event. What is our event? The problem is solved.
प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, correct na? And the problem is not solved is how much? This is problem is not solved is probability of a dash intersection b dash intersection c dash. Therefore the problem is solved का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. याद रखिए प्लीज, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. इट इज सॉल्व्ड मीन्स व्हाट? इट इज सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम. एटलीस्ट वन रहेगा तो ऑलवेज कंसीडर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये चार ही टाइप रहते हैं, ये चारों में से कुछ ना कुछ एक आ जाएगा. पहला उन्होंने क्या बोला है? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम और एग्जैक्टली टू ऑफ देम, or the problem is not solved or the problem is solved. Solved means it is solved by what? At least one of them. At least one रहेगा तो हमेशा काय करायचं? उलट करायचं. यूज what? The problem is not solved. इंडिपेंडेंट इवेंट्स के यही चार आएंगे. मेरा फेवरेट है, कभी भी नहीं आया अभी तक सीईटी में. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? odds. Odds. If odds in favor of A are P is to Q, अगर फेवर असेल तर प्रोबॅबिलिटी इज व्हॉट? P अपॉन P प्लस Q. अगेंस्ट असेल व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी? N अपॉन M प्लस N. फेवर रहेगा तो P अपॉन P प्लस Q, अगेंस्ट रहेगा तो M अपॉन, अगेंस्ट रहेगा तो इट विल बी N अपॉन M प्लस N. फॉर एग्जाम्पल, if odds in favor of A are 2:5, what is the probability? Probability of A will be 2 upon 2 plus 5 म्हणजे 7. आणि against असेल तो this will be how much? 5 upon 7. झेप रहा है क्या? दिस इज व्हाट? दिस प्रोबेबिलिटी ये रहता है फेवर में, ये रहता है अगेंस्ट में. तो दिस इज एन इवेंट एंड दिस इज व्हाट? इट्स कॉम्प्लीमेंट. झेप रहा है क्या? दिस विल बी व्हाट? एन इवेंट, और ये क्या रहता है उसका? कॉम्प्लीमेंट. फेवर रहेगा तो पहला वाला न्यूमरेटर में, अगेंस्ट रहेगा तो दूसरा वाला न्यूमरेटर में. याद रखिए, फेवर रहेगा तो पहला वाला न्यूमरेटर में और अगेंस्ट रहेगा तो दूसरा वाला न्यूमरेटर में. इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं बहुत. सब प्रॉब्लम्स आर फ्रॉम टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड. व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन टू फेयर डाइज आर थ्रोन? व्हेन टू डाइज आर थ्रोन आपका एन ऑफ एस कितना हो जाता है? 36. मालूम मेरे बुड्ढे, आगे बोल. मल्टीपल ऑफ 3 म्हणजे स्कोर इज व्हाट? 3, 6, 9 और 12. करेक्ट? मल्टीपल ऑफ 3. नाउ द स्कोर इज 3 और 6. इसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास? r-1. 9 और 12, द स्कोर शुड बी 9 और 12. फॉर्मूला इज व्हाट? 13 माइनस r. सो व्हेन द स्कोर इज 3, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना आ जाएगा? ऊपर लिखता हूं ताकि इसके आगे आगे लिख सकते हैं. number of sample points when the score is how much? 3. 3 minus 1, 2. 6 minus 1, 5. 13 minus 9, 4. 13 minus 12, 1. तो इसका टोटल कितना हो गया? 12. करेक्ट? what is the probability that the probability that the score is मल्टीपल ऑफ 3 कितना आ रहा है आपका? 12 अपॉन 36 म्हणजेच 1 अपॉन 3. 3 को क्या लिख सकते हैं? ये सेम चाहिए, न्यूमरेटर वाला नीचे भी चाहिए, तो 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2. अपने को क्या पूछा है उन्होंने? ऑड्स इन फेवर. फेवर असेल तर पहिलं काय येणार? न्यूमरेटर मध्ये. तो योर आंसर विल बी व्हाट? 1:2. झेपता है क्या? जो न्यूमरेटर में रहता है वो पहले वाला रहता है. ये नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए. प्लीज रिमेंबर, ये जो दोनों नंबर है ये सेम होने चाहिए और आगे ऐड कर देना है जो भी रहेगा. ओके? ऑड्स इन फेवर विल बी 1:2. अगेंस्ट विचारला असेल तर इट विल बी व्हाट?
2:1. नहीं समझा टेंशन मत लो, और सम्स करते हैं. There are three events A, B and C and only one of which can and must happen. एक ही event happen हो रहा है, okay? The odds against event A are 4:7, against B are 5:3. We want to find odd against C. आराम से करते हैं भैया. Now what is the probability of A? ये क्या है? अगेंस्ट. अगेंस्ट बोला तो बाद वाला क्या आता है? 4/11. व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 3/8. वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. अगेंस्ट असेल तो बाद वाला लेना है न्यूमरेटर में. वन अँड ओनली वन इव्हेंट अकर म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ सी. दिस इज इक्वल टू 1. 4/11 plus 3/8 plus probability of C is equal to 1. Probability of C will be 1 minus 4/11 minus 3/8. LCM कितना आ गया? 88. यहाँ आ जाएगा 88. 8 4 जा 32. 11 3 जा 33. तो आपका कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी? करो फटाफट. खालती आहे 88. ऊपर कितना आ जाएगा? 30 और 30 हो जाएगा 60. ये हो जाएगा 65. ये हो जाएगा 23. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 23/23 प्लस कितना? दिस विल बिकम हाउ मच? बोलो बोलो. टेल 85 में और 23 में से गया तो 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5. एंड ये 65. करेक्ट. ना अपने को क्या पूछा है? अगेंस्ट. अगेंस्ट म्हणजे ये जो ऊपर रहता है ये बाद में आता है. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 65:23. झेप रहा है क्या? दिस इज व्हाट इन फेवर. करेक्ट. 23:65 ये फेवर में है और अगेंस्ट क्या आ जाएगा? 65:23. करेक्ट है. इन फेवर इज 23/23 प्लस 65. अगेंस्ट कितना आ जाएगा? उल्टा 65:23. ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. द ऑड अगेंस्ट अ पर्सन A speaks truth are 3:2. odds that A speaks truth. तो A speaks truth का probability उन्होंने क्या दिया है? A speaks truth will be 3/5. B speaks truth will be what? 5/8. करेक्ट ना? उन्होंने क्या बोला है? A speaks truth तो 3/5. अगर तो A will tell a lie will be what? 2/5. उल्टा. बरोबर ना? स्पीक्स ट्रुथ मतलब फेवर मध्ये प्रोबॅबिलिटी किती येणार? 3/5. अगेन्स्ट असेल तर 2/5. अगेन्स्ट स्पीक्स ट्रुथ म्हणजे काय? ही स्पीक्स अ लाय. अगेन्स्ट बी इज 3/8. if in what percentage of cases they contradict each other? Contradict म्हणजे काय? If A speaks truth, B will tell a lie, or if B speaks truth, A will tell a lie. And they are what? Independent events. This will be probability of A into probability of B dash plus probability of A dash into probability of B. What is probability of A? 3/5. What is probability of B dash? 3/8. Plus probability of A dash will be 2/5. Probability of B is how much? 5/8. So 5 2s are 10, 3 3s are 9. It will become how much? 90/40. आपको पूछा है in what percent? Percent म्हणजे ओके. 90/40 into 100. हैप्पी बर्थडे. ये कट गया 2. ये हो जाएगा 2.5. This will become 25 9s are 25 1s are 35 45 47.5%. Okay, percentage multiply by 100. Chindi problem. Again, one more problem based on odds. A fair dice is thrown twice. इसका meaning क्या है? 2 dice are thrown. Please remember. What are the odds in favor of getting 4 5 6 on the first toss and 1 2 3 4 on the second toss?
अ डाय इज थ्रोन ट्वाइस, ह्याचा अर्थ काय? टू डाइज आर थ्रोन, एन ऑफ एस कितना आने वाला है? 36। फर्स्ट डाई के ऊपर आपको चाहिए 4, 5 एंड 6, और सेकेंड डाई के ऊपर आपको क्या चाहिए? 1 और 2 और 3 और 4. म्हणजे किती येणार आहे? योर एन ऑफ ए विल बी हाउ मच? 12. करेक्ट ना? फर्स्ट डाई पे 4 और 5 और 6, सेकेंड डाई पे 1 2 3 4. सो व्हॉट विल बी योर प्रोबॅबिलिटी? चिंदी प्रॉब्लेम. 12 अपॉन 36 म्हणजेच 1 अपॉन 3 म्हणजे 1 अपॉन 1 प्लस 2. आपको क्या पूछा है? फाइंड द ऑड्स इन फेवर. फेवर असेल तर न्यूमरेटर वाला पहला रहता है, 1:2. झेप रहा है क्या? फेवर असेल तो ये पहला लिखना है न्यूमरेटर वाले को, अगेंस्ट रहेगा तो इट विल बी 2:1. नेक्स्ट प्रॉब्लम. सब प्रॉब्लम्स लिख के रखे हैं, फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे. A party of 10 men is to be seated around at a circular table. Circular table असेल तर तुमचं n of s किती होणार? 10 minus 1 factorial, that is 9 factorial. Correct है? Find the odd against the event that the two particular men sit together. Now, if you consider, let us suppose A be an event that two particular men, two particular men sit together. दो अगर एक साथ बैठ रहे, जब भी टुगेदर रहेगा तो मैंने आपको क्या बोला है? एक ग्रुप बना दिया. बाकी कितने बच्चे? 8 persons. Correct? This 8 person plus 1, 9 persons can be arranged in how many ways? 9 factorial ways. That is wrong. This is circular table. Circular असेल तर 9 minus 1 factorial. This will become how much? 8 factorial. And these two persons can be arranged among themselves in 2 factorial ways. So your probability will be how much? 8 factorial into 2 factorial upon 9 factorial. So this will become 2 upon 9. 2 upon 9 means 2 upon 2 plus 7. आपको पूछा क्या है? ऑड अगेंस्ट. अगेंस्ट रहेगा तो ये वाला बाद में आता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7:2. आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7:2. प्लीज रिमेंबर, वेन एवर इट इज सर्कुलर टेबल, एक कम करना है. लास्ट लेक्चर में भी किया था. सर्कुलर टेबल 1 लेस, 10 minus 1 it will become 9 factorial. Next problem. Odds in favor of A winning the game against B are 3:2. If 3 games are played, what are the odds in favor of A winning at least 2 games out of 3? Odds in favor of A winning the game against B is 3:2. म्हणजे probability of A, probability of A winning the game is how much? 3 upon 5. Correct na? 3 upon 5. And probability of B winning the game is how much? 2 upon 5. Correct na? Against B, probability of A. Odds in favor of A winning the game against B is 3:2. फेवर असेल तर हे पहिले घ्यायचं, 3/5, और B जीतेगा, इट इज हाउ मच? 2/5. If 3 games are played, what is the odds in favor of A winning at least 2 games out of 3? At least 2 म्हणजे what? A will win how many games? 2 or more than 2. Correct? 2 or more than 2. So A can win first game,
and second game, but not B will win the third game, or probability of A will win first and third game, or first sorry second and third game, or A will win all the games. झेपा क्या? At least two games. A can, how many games are played? Three games are played. And A will win what? Two or more. मतलब फर्स्ट सेकंड जीत सकता है, और फर्स्ट थर्ड जीत सकता है, और सेकंड थर्ड जीत सकता है, और तीनों गेम जीत सकता है. तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of B into probability of A into probability of A plus probability of A into probability of A into probability of A. They are what? Independent events. Just substitute, you will get the answer. ठीक है? Next problem. Odd against a person. Odd against a person who is 40 years of age living till he is 75 is 11 is to 5. So odd against, तो what will be probability that the person will be alive? Against रहेगा तो बाद वाला पहला लिखना है 5 upon 16. And for the second person to be alive is how much? 3 upon 8. देखना भैया, अगेंस्ट रहेगा तो बाद वाला लिखना है पहले. अगेंस्ट बी हु इज नाउ 35 टिल लिव्स ही 70 इज 5 is to 3. अगेंस्ट है तो इट विल बी 3 upon 8. Okay, so probability that these are what? These are the probabilities that A and B will be alive are respectively 5 by 16 and 3 by 8. हमको पूछा क्या है? Find the chance that at least one of the persons will be alive 35 years hence. At least one असेल तर काय करायचं? उलट. At least one is alive. अगर A is the event or E is the event, at least one is alive, means E dash will be what? No persons are alive. What will be probability of E dash? यहाँ पे दो person से, it will be probability of A dash intersection B dash. They are independent events. तो इसका आप find कर सकते हो. This will become 1 minus 5 upon 16 म्हणजे 11 upon 16 into 3 upon 8. 3 upon 8 नहीं, sorry, ये उल्टा आ जाएगा ना, तो it will be how much? 1 minus, तो it will be how much? 5 upon 8. So this will become 55 and this will become 128. क्या पूछा है? Find the chance that at least one of the persons will be alive. What is the chance that? Directly पूछा है, तो it will be what? 55 upon 128. This is what? No persons are alive. So what will be probability of E? 1 minus probability of E dash. ये याद रखिए please. You will get all the answers. Ting 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 ting. Next problem. A bag contains 6 black and X yellow balls. Two balls are drawn at random. The probability that both being black is 5 by 26. Find X. Total number of balls. Total number of balls. This is equal to 6 plus X. निकाल रहे कितने हैं? दो. तो n of s कितना हो जाएगा? 6 plus x c2. The probability that both the balls are black, let us suppose A be the event that both are black. Both balls are black. What is the probability? N of A will be how much? Black balls कितने हैं? 6. 6 में से निकाले 2.
What is probability of A sec C2 upon 6 plus x C2? This is given to be how much? 5 upon 26. इसको solve करना है. 6C2 means what? 6 into 5 upon 1 into 2 और नीचे आ जाएगा 6 plus x into एक कमती 5 plus x upon 1 into 2 cancel हो जाएगा 5 upon 26. Happy birthday, cross multiply, solve, find the value of x. Next problem. From a group of 5 men and 3 women, a committee of 4 persons is formed. 5 plus 3 कितना हो गया? 8. 8 में से कितना निकालना है? 4. तो आपका n of s कितना हो गया? 8c4. Correct? Find the probability that there is majority of men first और second is majority of women. Men कितने हैं? 5. वुमेन कितने हैं? 3. मेजोरिटी ऑफ मेन चाहिए. टोटल निकालना कितना है? 4. ये याद रखिए. देर आर हाउ मेनी मेन? 5 मेन एंड 3 वुमेन. निकालने कितने हैं? 4. अगर मैं इसमें से 3 निकालता हूं तो इसमें से कितना निकालना पड़ेगा? 1. और 4 निकालता हूं इसमें से कितना निकालना पड़ेगा? 0. 4 से ज्यादा तो निकाल, अगर इधर से 5, लेकिन टोटल कितना निकालना है? 4. करेक्ट. दो दो नहीं कर सकते, दो इधर से नॉट पॉसिबल बिकॉज मेजोरिटी शुड बी व्हाट? मेन. सो देयर विल बी टू केसेस, आइदर दिस और दिस. सो व्हाट विल बी योर इवेंट? 5 में से 3 एंड 3 में से 1 और 5 में से 4 एंड 3 में से 0. डिवाइड दिस बाय n ऑफ s, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी. नहीं समझा? वेरी गुड. यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वुमेन चाहिए. देर आर 5 मेन एंड 3 वुमेन. निकालना कितना है? 4. 3 वुमेन निकाले तो मेन कितने निकालेंगे? 1. टोटल कितना होना चाहिए? 4. और अगर आपने इधर से और क्या 4 तो नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 ही वुमेन दिया. इधर से निकालेंगे 2 तो इधर से निकालेंगे 2. ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये इक्वल हो गया. व्हाट वी वांट? मेजोरिटी ऑफ वुमेन. सो देयर विल बी ओनली वन केस. सो व्हाट विल बी योर n ऑफ b? 5c1 into 3c3. इसको you divide by what? n of s. You will get the probability that majority of men और majority of women. ये अलग अलग प्रॉब्लम में कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में. Divide by n of s, calculations तुम्ही करा. Next problem please. A team of 5 is to be selected from 8 boys and 3 girls. म्हणजे टोटल किती आहे? 11. 11 मधनं किती सिलेक्ट करायचे? 5. सिलेक्शन रहेगा तो C यूज करना है. Find the probability that it includes 2 particular girls. Okay? Let A be the event that it includes 2 particular girls. इसका मीनिंग क्या है भैया? 2 लड़कियों 8 बॉयज एंड 3 गर्ल्स में से मैंने पहले से आई हैव सिलेक्टेड 2 गर्ल्स. करेक्ट. 2 गर्ल्स पहले से मैंने सिलेक्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे कितने? 8 boys and 1 girl are left. बराबर है ना? That is 9. Correct? That is 9 persons are left, out of which कितना सिलेक्ट करना है? 5. अबे ढक्कन, 2 पहले से सिलेक्ट कर लिए, तो अभी कितने से? आउट ऑफ विच 3 कैन बी सिलेक्टेड इन 9c3 ways. झेपा क्या? So what will be your probability? Probability of A will be 9c3 upon 11c5. झेपा क्या किया मैंने? प्लीज देखो, 2 गर्ल्स को मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है.
दो वशीले वाले को पहले से ही सिलेक्ट कर लिया है, तो दो को मैंने सिलेक्ट किया तो कितनी लड़कियां बच्ची, एक बच्चा, और ये 8 बॉयज, तो 8 प्लस 1 टोटल कितने हो गए 9, और उसमें से सिलेक्ट कितना करना है मेरे को, सिर्फ 3, बिकॉज 2 हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड. इंस्टेड ऑफ टू पर्टिकुलर गर्ल्स आर सिलेक्टेड इंक्लूड्स, ऐसा लिखा है मैंने. अगर ऐसा लिखा फॉर एग्जाम्पल टू गर्ल्स आर एक्सक्लूडेड, टू पर्टिकुलर गर्ल्स, ओके, टू पर्टिकुलर गर्ल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कमिटी. अगर मैंने ऐसा लिखा है तो क्या बचने वाला आपको, 8 बॉयज और 2 लड़कियों को, टू पर्टिकुलर गर्ल्स को इसमें से मैंने निकाल दिया, उनको छोड़ दिया, तो बचे कितने, 8 बॉयज एंड 1 गर्ल, और निकालने कितने मेरे को इन दिस केस 5, because two girls are what, excluded. So in this case what will be your probability, n of b will be how much, 9c5. ये झेपा क्या, क्योंकि जब भी इंक्लूडेड रहेगा, जब भी इंक्लूडेड रहेगा तो क्या हो रहा है कि दो लड़कियों को मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया है, तो टोटल मेरे को निकालने के कितने हैं 5, दो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है तो कितने निकालने के हैं मेरे को 3. 3 persons कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 इन 9c3 ways. ओके, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड किया है मतलब इसमें से दो लड़कियों को मैंने निकाल दिया है. बच्चे कितने, 9 बच्चे, निकालने कितने हैं 5 बच्चे. इट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, 9c5 ways. So probability will be 9c5 upon 11c5. नहीं समझा, वेरी गुड. नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिजिट्स का करते हैं थोड़ा. A number of two digit is formed from using the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9. What is the probability that number chosen is an even number or less than 60? Now please remember, कुछ कंडीशन अगर नहीं दिया है तो आपको रिपीटेशन अलाउड है. 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9. टू डिजिट नंबर मतलब छोटा सा नंबर है. Okay, units place and tens place. Now this place can be filled in 9 ways, this place can be filled in 9 ways, any 9 numbers, 9 into 9. अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता था, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आपका एन ऑफ एस कितना आता था 9 इंटू 8, इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड. अगर स्पेसिफाई नहीं किया है कुछ भी तो आपको हमेशा क्या लेना है, रिपीटेशन इज अलाउड. ना आपको क्या पूछा है, नंबर शुड बी इवन नंबर. भैया दो जगह है. इवन कभी रहेगा जब भी ये प्लेस में क्या आएगा, 2 और 4 और 6 और 8, मीन्स दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज, है ना. द नंबर इज इवन व्हेन द यूनिट्स प्लेस इज आइदर 0 2 4 6 8, 0 तो है ही नहीं, तो 2 4 6 8, और लेस देन 60, ये नंबर, तो ये प्लेस में क्या आप डाल सकते हो, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5. द नंबर शुड बी व्हाट, एन इवन नंबर एंड लेस देन 60 चाहिए, बराबर. इवन नंबर एंड लेस देन 60. लेस देन 60 मतलब ये कितना आएगा, 1 2 3 4 एंड 5. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. So what will be your n of a? N of a will be 5 into 4, that is equal to what, 20. So your probability of a will be 20 upon 81. You can see the number is even number and it is what, less than 60. दोनों condition satisfy हो गया. Next problem or on the digits. A 4-digit number is formed using the digits 1 2 3 5 with no repetitions. Find the probability that the number is what, divisible by 5. The number is what, divisible by 5. कितना डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है. पहला इसमें आउट ऑफ 4 digits, 4 can be selected in 4p4 ways, that is 4 factorial ways. अगर ये नहीं समझा है आपको तो हम ये कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड आइदर बाय 1 2 3 5. हाउ मेनी वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज. So probability n of s will be 4 into 3 into 2 into 1, that is what, 4 factorial. If
रिपीटेशन इज अलाउड, तो आपका एन ऑफ एस कितना होता था, 4 into 4 into 4 into 4. डिफरेंस समझ गया? Okay, now we want to find the probability that the number is divisible by 5. The number is divisible by 5 if and only if ये प्लेस में क्या होना चाहिए, 5 और 0. तो यहाँ पे मैंने 5 फिक्स कर दिया है क्योंकि 0 तो है ही नहीं, तो 5 फिक्स कर दिया है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली इन वन वे. बाकी बच्चे कितने, 3 बच्चे, दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 1 वेज. अगर रिपीटेशन अलाउड रहता तो ये क्या आता था, 3 into 3 into 3. So this will become n of a will become how much, 3 factorial. So what will be your probability, 3 factorial upon 4 factorial, which will be what, 1 upon 4. अगर रिपीटेशन अलाउड रहता था तो इट विल बी 4 into 4 into 4 into 4 upon 3 into 3 into 3 into सॉरी 3 into 3 into 3 into 3 upon 4 into 4 into 4 into 4. टिंग 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 नहीं समझा, अजून करूया. A 4-digit number is formed with the digits without repetitions. Find the probability that the number is divisible by what, 5. अभी ध्यान दीजिए, 4 digit नंबर है, 4 digit नंबर में ये प्लेस में 0 नहीं आ सकता. अगर यहाँ पे 0 लिखा तो दिस विल बिकम व्हाट, 3 digit नंबर. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 5 वेज. बराबर है? तो ऑल पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं मैं, एन ऑफ एस, दिस विल 5 वेज, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नेक्स्ट विल बी इन 5 वेज, 4 वेज एंड 3 वेज. झेपा क्या? बिकॉज इसमें क्या आ सकता है, इसमें एक डाल दिया, इधर के 4 बच्चे और एक 0, तो कितने बच्चे इधर, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3. झेपा क्या भैया? इसमें 0 नहीं डाल सकते, तो इसमें क्या डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी वेज, 5 वेज. इधर क्या डाल सकते हैं, 0 1 2 3 4, अगर हमने 5 इधर डाल दिया तो. फिर इधर एक नंबर डाल दिया सपोज 4, तो यहाँ आएगा 0 1 2 3, 4 वेज. इधर सपोज 3 डाल दिया, यहाँ आएगा 0 1 2, हाउ मेनी वेज, 3 वेज. तो 5 into 5 into 4 into 3. Find the probability that the number is what, divisible by 5. Now the number is divisible by 5 if units place is filled by 0 और 5. अभी हम लेते हैं केस 1. ओके, units place is filled with 0, and case 2, units place is filled with what, 5. देखना भैया, 1 2 3 4, इधर मैंने 0 फिक्स कर दिया है, करेक्ट. बाकी कितने बचते हैं, 5 डिजिट्स बचते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए कितना आएगा, 5 into 4 into 3, दिस विल बिकम हाउ मच, 60. बराबर है ना? एक इधर 0 मैंने फिक्स कर दिया, इधर फिक्स, दिस इज ओनली इन वन वे. बाकी बच्चे 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज. नेक्स्ट देख, 1 2 3 4, तो इधर मैंने क्या फिक्स कर दिया, 5. लेकिन 0 में इधर नहीं डाल सकता हूं, तो इधर मैं क्या डाल सकता हूं, 1 2 3 4. इधर 0 डाला तो इट विल बिकम व्हाट, 3 digit नंबर. तो यहाँ कितना वेज, 4 वेज इन टू. ये प्राय क्या भाई, यहाँ कितना हो गया, 4 वेज. यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 0 भी चलेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3. तो दिस विल बिकम हाउ मच, 48. झेपा क्या भैया? बिकॉज इधर 0 नहीं आ सकता, इधर अगर 0 आया तो दिस विल बिकम व्हाट, 3 digit नंबर, बट आई वांट टू फॉर्म हाउ मेनी डिजिट नंबर, 4 digit नंबर. तो 0 कैन नॉट बी इन व्हाट, थाउजेंड्स प्लेस, करेक्ट. तो इधर क्या आ सकता है, इधर 1 और 2 और 3 और 4. इधर 5 फिक्स है, इसलिए यहाँ 4 वेज. फिर यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे गया, बाकी कितने बच्चे यहाँ पे, 0 1 2 3 4 वेज, यहाँ पे 3 वेज. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज, एन ऑफ ए आपका कितना आ जाएगा, 60 + 48, दिस विल बिकम हाउ मच, 108. सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी, 108 अपॉन 5 into 5 into 4 into 3. जेपरा क्या भैया, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इन द यूनिट्स प्लेस यू हैव व्हाट, आइदर 0 और 5. चलो लास्ट प्रॉब्लम आज के सेशन का, रूम हैज, ये मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है.
3 sockets for lamps from a collection of 10 bulbs. 6 are what? Defective. A person selects 3 at random and puts them in the socket. What is the probability that the room will be lit? टोटल बल्ब्स कितने हैं? 10. निकालने के कितने हैं? 3. So what will be your n of s? Your n of s will be 10c3. रूम में लाइट कभी आएगा? जब भी एक लैंप, एक बल्ब ऑन होएगा, या 2 या 3. मतलब let A be the event that at least one bulb in good condition is selected. बराबर. और एटलीस्ट वन रहेगा तो हमेशा उसका क्या लेना है आपको? कॉम्प्लीमेंट. कि all bulbs are what? Defective. There are how many defective bulbs? 6 are defective. Out of 6, 3 can be selected in how many ways? Sexy 3 ways. So what will be your probability of A dash? It will be sexy 3 upon 10c3. This will become 6 into 5 into 4 upon 10 into 9 into 8. तो ये हो जाएगा हैप्पी बर्थडे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/6. व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश. 1 माइनस 1/6. दिस इज इक्वल टू 5/6. टिंग टिंग टी टिंग. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे बेस थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर रहेगा प्रोबेबिलिटी का. ओके, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर.